যোগা, জিম এই শব্দবোৰ এতিয়া আমাৰ জীৱনৰ সৈতে অভ্যস্ত হৈ পৰিছে। আমি এইবোৰৰ সৈতে অভ্যস্ত হৈ পৰিছোঁ। আমাৰ জীৱনৰ বা আমাৰ দিনটোৰ অলপ সময় উলিয়াই আমি এই শব্দবোৰ বা যোগা, প্ৰাণায়াম, জিমত আমি আজিকালি অতিবাহিত কৰা হৈছোঁ। কিয়নো আমি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সচেতন হৈছোঁ। পূৰ্বতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যিসকল শৰীৰ চৰ্চাবিদ আছিল বা যিসকল অভিনেতা অভিনেত্ৰী আছিল তেওঁলোকেহে যেন এইবিলাক কৰিব লাগে তেনে এটি থিংকিংছ, তেনে এটি ধাৰণা আছিল। কিন্তু সেই ধাৰণা এতিয়া ভাঙি গৈছে। এতিয়া সকলো সাধাৰণ ৰাইজে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সচেতন হৈছে। আৰু আজি ডিডি অসম সেই তেনে এগৰাকী ব্যক্তিৰ ওচৰত আমি আহি কাষ চাপিছোঁ, যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে বিশেষকৈ নাৰীসকলে নিজক সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি বা সুস্বাস্থ্য ৰাখিবলৈ কেনেধৰণে তেওঁলোকে থাকিব লাগে, কি কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আমাক জনাব। আহক যাওঁ তেওঁৰ সৈতে। এগৰাকী নাৰীৰ পক্ষে হয়তো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে এনেধৰণৰ কাম সম্ভৱ নহয়। কিন্তু আমি যিগৰাকী ফিটনেছ ট্ৰেইনাৰৰ ওচৰতে আমি আহিছোঁ, সেই কোচগৰাকীয়ে প্ৰতিগৰাকী নাৰীক কিন্তু এই কষ্ট কৰি এই জিম কৰিবলৈ শিকায়, যাতে সেইগৰাকী নাৰীৰ স্বাস্থ্য অধিক কটকটীয়া হয়, মজবুত হয় বা সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হয়। গতিকে পলম নকৰোঁ, আহক সেইগৰাকী ফিটনেছ ট্ৰেইনাৰৰ সৈতে আমি পৰিচয় হওঁ আৰু তেওঁ আমাক কেনেধৰণৰ হেল্থ টিপছ দিয়ে যাতে আমি সুস্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিব পাৰোঁ, এক সুন্দৰ দেহৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰোঁ। আৰু দৰ্শকসকল, আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে কোনগৰাকী ফিটনেছ কোচৰ ওচৰত আমি আহিছোঁ, কাৰ সৈতে আজি আমি কথা পাতিম, আৰু সেয়া হৈছে ৰুচি ভৰদ্বাজ বৰা। আৰু বাইদেউ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। থেংক ইউ, ভাল লাগিলে আপুনি আহিছে, স্পেচিয়েলি ডিডি অসম আজি মোৰ ঘৰত আহিছে, মানে এইটো মানে কেতিয়াও এনেকুৱা হোৱা নাই। চ' বিগ থেংক ইউ টু অল অফ ইউ। আপোনাৰ অসমীয়াখিনি খুব সুন্দৰ, চেষ্টা কৰিম, ভুল হ'লে মাফি কৰিবা। তো মই দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে বহু বছৰ ধৰি তেখেতে এই লাইনটোত আছে। এগৰাকী নাৰী বিশেষকৈ নিজকে কি ধৰণে সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰে বা এক সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী হ'ব পাৰে তাৰ বিষয়ে তেখেতে বহুত কাম কৰিছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমাৰ দৰ্শকসকলক মই আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা, তেখেতৰ সহধৰ্মিনী হৈছে ৰুচি ভৰদ্বাজ বৰা। আৰু তেখেত ছাৰক আজি আমি লগ নাপালোঁ, কিন্তু একো নাই, আমি মেডামৰ সৈতে কথা পাতিম, কেনেধৰণে তেওঁ কি টিপছ দিয়ে আমি তেওঁৰ পৰা জানিম। ओके मैम, पहले आपसे जानना है कि आपने कब से शुरू किया था? ফিটনেছত সোমালো 10 বছৰ হ'ল। अच्छा, ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ নিজৰ গা কাৰণে, जी सबों मतलब लोगों खुद के लिए, हाँ खुद के लिए। हाँ। बच्चे हो गए, घर में अजीब सा लगने लग गया। उस टाइम में मैं जॉब नहीं कर रही थी क्योंकि ऐसी जगह पोस्टिंग थी बीच में, और बच्चे छोटे थे, तो आई चोज नॉट टू वर्क दैट टाइम। तो थोड़ा स्लगिश लगता था, वेट पुट ऑन हो रहा था जो मिड लाइफ में शुरू होता है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज शुरू किया। और एक आने और भयो आছিলে क्योंकि মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ একদম গোলুমলু আছিলোঁ, মানে ৱেইট আছিলে আৰু এটা যুদ্ধ সদায় আছিলে कि स्ट्रगल আছিলে वेट लॉस। মই যেতিয়া মানে 10 साल पहले जब सोशल मीडिया आया तब पता चला कि लेडीज तो बहुत वेट लिफ्टिंग करती हैं, वर्कआउट करती हैं, तभी शुरू हुआ था। ये मैं बात कर रही हूँ 2014 या 2015 की। अब तो हाँ, सो ऑलमोस्ट दैट टाइम। तब मैंने धीरे धीरे एक्सरसाइज शुरू की। तब आप कहाँ पे थे? तब सिलचर कचार में थे तब। फिर उसके बाद इनका ट्रांसफर हुआ मेरे हस्बैंड का, तो वी केम टू धुबरी में तो भी कोई जिम नहीं था, कोई जॉब का एवेन्यू नहीं था। 1 साल थे हम वहाँ। मैंने 1.5 किलो का छोटा छोटा डंबल लेके घर में एक्सरसाइज किया। क्या कहाँ से सीखा आपने? मतलब यूट्यूब? वो तो पूछे ही मत, बस यूट्यूब देख के, फेसबुक देख के, कुछ भी एक्सरसाइज के नाम नहीं पता थे कि अलग अलग मसल ग्रुप्स की ट्रेनिंग होती है। आई जस्ट डिड व्हाट आई सॉ, रैंडम थिंग्स। क्योंकि तब तो शायद गाइड करने वाला कोई था नहीं। और ভুলো কৰিলোঁ, কিমান ভুলো কৰিলোঁ, लेकिन I was careful। এতিয়া কেনেকুৱা লাগে আপোনাৰ? Of course I think as a coach, I will not say I feel good, I feel strong inside out। My confidence level has gone another level। ये जो मैं आज से आपसे ऐसे बात कर पा रही हूँ, मैंने केत्याও ভাবাই নাছিলো कि মই কেতিয়াবে ডিডি ন্যাশনাল টিভি पे इंटरव्यू दूंगी। तो मैं माने
সপোনত ভাবা নাছিলো নাই আমাৰো ভাল লাগিছে আপুনি সময় দিছে ইভেন আপোনাৰ ক্লায়েণ্টৰ লগত চাগে আপুনি কিমান মান টাইম দিয়ে ক্লায়েণ্টৰ কিমান ক্লায়েণ্টছ আছে মেইন কথা এইটো मोर मैंने 200 एक्टिव क्लाइंट्स আছে एंड सबसे मैं खुद बात करती हूँ आई हैव नॉट अ सिंगल असिस्टेंट सबके मैं डाइट चार्ट्स ट्रेनिंग प्लान्स खुद अपडेट करती हूँ सबसे 1-to-1 टॉक करती हूँ सबका देखते भी यस एंड मैं सुबह अराउंड 7:30 मॉर्निंग में कॉल शुरू करती हूँ और कई बार रात को 10:30 खत्म होती हैं सो इतनी कॉल्स रहती हैं बीच में 2-2.5 घंटे का अपना वर्कआउट करती हूँ सो इट्स लाइक एंटायरली ফুল টাইম ইনটু কোচিং ইয়েস যিখিনি টিউটাৰ জব কৰে তেওঁলোকে বাৰু ব্যস্ত হৈ পৰে বা কাৰোবাৰ লগত ওলাই যায় সেইটো তেনেকুৱা ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ বা লাইফষ্টাইলটো বেলেগ হয় যিখিনি ঘৰত থাকে হাউচ ৱাইফ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা থাকে হাজবেণ্ড থাকে দেন শাহু শহুৰ এইবিলাক ফুল ফেমিলি এটা থাকে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে চাগে ফিটনেছ হৈ কৰাটো খুব কঠিন কাম হয় আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে ভাবে যে মোকো এনেকুৱা কিবা এটা কৰিব লাগে চ' তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে এজ এ বিগিনাৰ वर्किंग वुमन की लाइफ डिफिकल्ट है तो होम मेकर की भी बहुत टफ है क्योंकि सच एन अंडरपेड अंडरपेड इट्स नॉट पेड ऑब्वियसली अंडरवैल्यूड तो है इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड कि तुम तो घर में हो आराम कर सकती हो बट शी इज वर्किंग 24/7 तो मैं स्टार्ट करती हूँ न्यूट्रिशन उनको समझाना शुरू करती हूँ कि आपके न्यूट्रिशन में कहाँ क्या कमी है उसको ठीक करती हूँ उसके बाद मैं मोटिवेट करती हूँ कि कुछ नहीं कर सकते तो लेट्स स्टार्ट गोइंग फॉर वॉक्स उन लोगों को तो मोटिवेट करना भी बहुत टफ होगा टफ है टाइम ही नहीं मिलता है बेचारियों को इट्स टफ एक अलग से दुनिया में रहती है फिर आप उसको उतार के फिर इस दुनिया में लाओ और कभी सोचा ही नहीं क्योंकि अभी भी बहुत वुमेन ऐसे जिन्हों के लिए ये सोचना कि एक्सरसाइज करना डंबल उठाना इज लाइक अ बिग थिंग ये तो हमने किया नहीं और क्यों करें हमें नहीं करना तो मुझे उनको बहुत कन्विंस करना पड़ता है और वो कन्विंस इसीलिए होते हैं क्योंकि वो मुझे रोज देखते हैं करते हुए इसलिए मेरे पे और एक मेरे को लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है टू शो अप एवरी डे सोशल मीडिया पे मैं इसीलिए डालती रहती हूँ ताकि एंड आई शेयर माई चैलेंजेस ऑल्सो कि आज बिल्कुल मन नहीं था लेकिन फिर भी आ गई और ज्यादा एडिटेड वीडियोस नहीं डालती हूँ आज तो फिर भी थोड़ा मेकअप किया हुआ है जैसे हूँ वैसे ही डाल देती हूँ तो एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ साड़ी पहन के पुल अप करना चादर मेखला पहन के पुल अप करना तो সেইবিলাকো আমি দেখিছো তো এইটো কেনেকে হ'ল তাৰমানে ঘটনাটো এইটো একো প্ল্যান নাছিলে দেই এইটো জাস্ট মই মানে মোৰ ছোৱালীৰ পিটিএম আছিলে মই স্কুল যাবলৈ ৰেডি হৈছিলো আৰু মোৰ তেতিয়া আমি বেলেগ ঘৰত আছিলো আৰু उसमें पुल अप बार बाहर लगा था गेट के साथ तो बस एनी और এইটো অভ্যাস আছে আহা যোৱা কৰি মই পুল আপ কৰি থাকো সদায় এইটো নাই কি মৰ্নিং কি কৰিম তো মই ৰেডি হৈছিলো আৰু একদম মোৰ হেল্প আহিলে মোক এটা ভিডিঅ' বনাচোন মই ইয়াত পুল আপ মাৰি দিম আজি তো তাই ৰেকৰ্ড কৰিলে আৰু মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত ডালিলো মই এইটো ভাবাই নাছিলো কি এইটো ইমান ভাইৰেল হৈ যাব আৰু তারকে আগতে এটা ভিডিঅ' যে চাদৰ মেখলা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিলে এইটো আমাৰ এটা ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত আছিলে সিহঁতে আমাক ভাত খাবলৈ মাতিছিলে বিহু টাইমত হা তেতিয়া যেতিয়া ভাত চাত খালো ৰাতি 12 বাজিছে তো এইটো মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনী কৈছে অব এই মই পুল আপ বাৰ লগাইছো না আপুনি দেখা না অ হয় নেকি পুল আপ মাৰি দিও না তো पुल अप के लिए आई एम ऑलवेज रेडी तो बस मैंने रात को 12 बजे खाना वाना खा के पुल अप मारे एंड चादर मेखला पहन के एंड दैट बिकेम वायरल एगराकी महिला 30 পৰা 40 বিয়া হৈছে তেওঁ ঘৰত থাকে তো তেনেকুৱা এগৰাকী মহিলা শকত মহিলা এগৰাকীয়ে প্ৰথমতে আপুনি তেওঁক মানে যিখন ফিটনেছ চাৰ্ট থাকে মানে ক্যালোৰিজৰ খানাৰ যিখন থাকিব ফুড হেবিটছ তো সেইখন আপুনি কিমান মান কেনেকৈ দিয়ে सो सबसे पहले जब भी कोई मेरे पास आती है लेडी या मेल क्लाइंट आता है तो मेंटी उनको मैं उनका डिटेल्स लेती हूँ उनका मेजरमेंट्स बॉडी मेजरमेंट्स चाहिए होते हैं फिर हमारे पास ना कोई रेडीमेड डाइट चार्ट्स नहीं होते जैसे आप नो ऑफेंस टू एनीबडी बट बहुत सारे डाइटिशियंस के पास लिख देते हैं पेपर पे ये खा लो रात को रोटी चावल मत खाओ सब्जी तेल मत डालो लेकिन वी डोंट डू दिस हमारे बड़े ही पर्सनलाइज्ड प्लान्स होते हैं कि मैं उनकी डाइट हिस्ट्री लेती हूँ कि आपको क्या खाने की आदत है रोज में तो उसी में से उनका डाइट प्लान बनता है ताकि उनको एफर्ट ना लगे कि कुछ नया करना है और ना ही कोई फैंसी एग्जॉटिक फूड देते हैं हम जो मैंने या तो আমি सब भात खाऊं जो अगर राइस चाहिए तो उनको राइस ही मिलेगा যদি মাছ মাংস ভাল পায় तो एटुई पाबो कोई निरामिष वाले हैं तो उनको वेजिटेरियन प्योर वीगन भी है मेरे पास तो उनका बिल्कुल पर्सनलाइज्ड प्लान्स बनते हैं मतलब नया कुछ नहीं है कि ये सोच में पड़ गए कि ये कैसे खाऊं वो कैसे खाऊं ये कहाँ मिले इसीलिए सस्टेनेबल है कि आप जो खा रहे हो उसी में से बस उसमें मैं क्वांटिटी स्पेसिफाई कर देती हूँ कि ये इतना खाना है देयर इज वेयर द मैजिक इज कि आपको बस मेजर करना है जो दिया जा रहा है आपको खाना
सो नॉर्मल, मैं ये भी नहीं कहती कि उठ के ये वाला जीरा पानी पियो, ये पियो, ये पियो, कुछ नहीं कहती हूँ। आई जस्ट टेल देम, आस्क देम कि ये खाते हो, और फिर उसमें से अगर किसी को चाय पीने का आदत है तो उनको चाय मिलेगा, कोई सुबह रोटी खाता है रोटी, कोई ब्रेड खाता है ब्रेड, तो जो खाते हैं वही बस उसकी क्वांटिटी स्पेसिफाई कर देते हैं कि आपको बस ये वाली चीजें इतनी इतनी खानी है, वो मेजर करके बनाना है। अच्छा, उससे ही प्रिसीजन आती है, एंड दैट्स व्हाई मेरे 40s और 50s वाले भी इतना प्रोग्रेस करते हैं। तो कभी हम लोग जब भी देखते हैं कि जिम जाते हैं या योगा करो, कुछ भी करो, हम लोगों का क्या होता है कि जल्दी जल्दी वेट लॉस हो जाए, एक महीना मतलब मुझे तो वेट लॉस करनी ही है, करने है, लेकिन उसके बाद जब देखते हैं कि नहीं हो रहा है, इतनी जल्दी ये वेट लॉस नहीं होते, तो उन लोगों के माइंडसेट थोड़ा डाउन हो जाते हैं। होता है। हाँ, तो तब आप क्या करते हो? क्योंकि इतनी जल्दी तो वेट लॉस होते नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ मेंटरशिप वहाँ शुरू होती है जहाँ कोचिंग खत्म होती है। सब कोचिंग बहुत लोग करते हैं, मेंटरशिप नहीं कर सकते सब। क्यों? क्योंकि आपको बहुत इमोशनली भी इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने मेंटी के साथ। क्या होता है, जो आपने कहा, बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। स्पेशली विमेन कहेंगे कि हमें तो एक हफ्ते में इतना कम कराना। देन आई एक्सप्लेन देम द मैथ्स कि जो मैंने कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से आप इतना वेट लूज कर सकते हो हर हफ्ते, इफ यू डू एवरीथिंग राइट। अगर नहीं किया तो वी डोंट एक्सपेक्ट दैट। लेकिन मैं कहती हूँ कि खाली डाइट से मुझे एक्टिविटी भी चाहिए, क्योंकि आप भूखे रह के डाइट करके स्टारवेशन करके कितना दिन रह सकते हो और वेट लूज कर लोगे? मान लीजिए कर लिया डाइटिंग करके, फिर उसके बाद जब नॉर्मल खाते हैं तो वेट सारा वापस आ जाता है। तो मैं उनको समझाती हूँ कि हम एग्रेसिव कुछ नहीं करेंगे, वी विल गो इन अ सिंपल सस्टेनेबल वे, भले ही थोड़ी देर लग जाए बट वी विल अराइव। एंड आपके स्पेशली फॉर वुमेन, उनके हॉर्मोन्स बहुत एक्सेस फैट लॉस इमीडिएटली करने से बहुत इफेक्ट होते हैं, फिर और तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है उनकी साइकिल्स को लेकर। सो आई हैव टू एक्सप्लेन देम एवरीथिंग, क्योंकि एक औरत की तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, थायराइड, पीसीओडी, वुमेन्स बॉडी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स। बहुत सारी बातें करूंगी, लेकिन एक बात मेरे अभी दिमाग में आ रहा है कि सर के साथ अब मिले कैसे हो? क्योंकि ऑब्वियसली आप बाहर में, फिर सर यहाँ पे, तो कैसे हुआ, मतलब कैसे हुआ? नहीं, सर वाज आल्सो स्टडीइंग देयर, माय हस्बैंड वाज आल्सो स्टडीइंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा, ही वाज स्टडीइंग इन सेल्स। अब बेसिकली कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। अब दिल्ली से, born and brought up in Delhi, but originally from Haryana, and এতিয়া মই অসমৰ বোৱাৰী। हाँ, फिर So we had a common friend. मैं रामजस कॉलेज में थी, हमारे कॉलेज भी अलग थे, बट मेरा जो क्लासमेट था वो इनका हॉस्टल मेट था। So through that common friend, his name was Sanjeev. He was from Mauritius. Through him, I met Digonto, and हम मिले थे year 2000 में। So almost 5 to 6 years का हमारा कोर्टशिप था। 2006 में we got married, और 2008 से मैं असम में। So now Assam is home. Yeah, we still feel like friends only. Husband wife वाला वो लगता ही नहीं। We still talk the same way. कोई difference आया ही नहीं। उनके फैमिलीज वाले जब आपको ऐसे दिखते हैं, कैसा लगता है उन लोगों को? क्या कमेंट आते हैं? बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव। हाँ। ये तो मैं मानूंगी कि हमार सोसाइटी इज वेरी सिंपल, वेरी पोलाइट। कमिंग फ्रॉम दिल्ली एंड हरियाणा, हमारी तो ऐसी, मतलब मैं जब बात करती हूँ तो अभी भी ऐसा लगता है कि हमारी तरफ एक कहावत है कि डंडा मार रहे हो क्या, फाइटिंग टाइप का। एंड इधर आके आई हैव लर्नड कि कैसे आप पोलाइटली बोल के भी अपने काम करा सकते हो। एंड सो लेकिन पीपल हैव बीन वेरी सपोर्टिव, स्पेशली मेरे इन लॉज की साइड से माँ, Digonto's mother, she's been very supportive of me, whatever I've done, my work. अभी भी वो फोन करके रोज पूछती हैं, अच्छा कॉल्स पे हो, एक्सरसाइज कर लिया, तुम्हें भाल के खावा दे, तुम्हें बहुत एक्सरसाइज हो रही है, तुम्हें भात साथ भाल के खावा दे। सो वेरी केयरिंग। एंड एक वीडियो भी आपने डाला था ना उनके सामने, आप पुल अप समथिंग कुछ कर रहे थे, जी, है ना? जी। सो हाँ, शी वुड, जब यहाँ, अभी तो वो छोटे भाई के घर गए, तो जब यहाँ होती हैं तो मैं जब मॉर्निंग में एक्सरसाइज करती हूँ, रूटीन है, शी वुड सिट देयर, माँ তাতে বহিব, মই 2 ঘণ্টা থাকিম তাত, মায়া চাই থাকিব, কিবা কিবি কথা পাতি থাকিব, এণ্ড এনকাৰেজ কৰি থাকে মোক। তেতিয়াহ'লে দৰ্শকসকল, আমি বহুত কথা পাতিলোঁ, এতিয়া আমি আচল জেগালৈ যাম য'ত তেখেতে নিজেই দেখাব বিগিনাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে কি কি কৰিব পাৰে। আপুনি ঘৰতে লাভ কৰিব কিছুমান টিপছ, আৰু যিখিনি কৰিলে আপুনি সুস্বাস্থ্য লগতে ৱেট লছ দুয়োটা হ'ব, হয়নে? জি, ঠিক আছে। উইথ জিম কষ্টিউম আমি চাম, কি কি কৰে আপুনি চাম, কিন্তু যিটো ভাইৰেল ভিডিঅ' শাৰীৰ লগত আপুনি পুল আপ কৰে, চ' সেইটো চান্স আমি মিছ কৰিব বিচৰা নাই। আমি দিদি অসমৰ দৰ্শককো দেখাব বিচাৰিছোঁ, খুব সুন্দৰ শাৰীখন পিন্ধিছে, এই শাৰী পিন্ধি আপুনি পুল আপ কৰি দেখাব লাগিব। Sure, with love. It is all time favorite to do pull-ups in sari ya mekhla. Surely. Okay.
জিম মুড আমি এতিয়া জিম মুডত আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে মেম পুৰা ৰেডি তো প্ৰথমতে মানে সম্পূৰ্ণ গেটআপেই চেঞ্জ তেতিয়া তাত বেলেগ এটা গেটআপত এতিয়াতে বেলেগ গেটআপত আৰু নিশ্চয়কৈ এইটোহে আচলতে মেইন গেটআপ কিন্তু আচলতে এইটোৱে আৰু আমি বাইদেউক আমি এনেদৰেহে জানো असली गेटअप असली रुचि भारद्वाज बड़ा यही है এইটোৱে তো ঠিক আছে আমি বহুত বেছি আপোনাকতো বহুত কৰা দেখা পাওঁ তো সেইখিনি এগৰাকী নৰ্মেল প্ৰথম বিগিনাৰৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় আৰু ঘৰত ধৰক এইখিনি সময় মই অকলে আছোঁ বা তেতিয়া মই নিজকে ৱৰ্কআউট কৰিবলৈ কি কৰিব পাৰোঁ हाँ ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है और आई एम ग्लैड आपने पूछा है क्योंकि घर में किसी के सबके पास इक्विपमेंट नहीं होते और अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं ठीक है तब मैं उनको बेसिक एडवाइस देती हूँ कि देखो बॉडी वेट वर्कआउट वैसे मुश्किल होता है लेकिन सबके पास घर में जैसे 1 लीटर की पानी बॉटल तो रहती है जैसे मैंने यहाँ रखी है सो इफ़ यू सी दीज बॉटल्स तो ये दोनों ऑलमोस्ट 1 लीटर की हैं तो आप अगर घर में इनमें पानी भर के इनको आप 1 kg डंबल की तरह यूज़ कर सकते हो वेरी इजी सब कर सकते हो और ये हैवी भी नहीं है इसमें आपको कोई ट्रेनर नहीं चाहिए आप वीडियो देख के भी कर सकते हो सो जस्ट मान लीजिए कि मुझे बाइसेप्स को ट्रेन करना है सो हर दिन हम लोग कोशिश करते हैं 2-2 3-3 मसल ग्रुप ट्रेन करें एज अ बिगनर तो मैं समझाती हूँ कौन कौन से मसल ग्रुप्स हैं जैसे आज मान लीजिए हम शोल्डर और बाइसेप की बात करते हैं तो ये साइड और हाँ ये शोल्डर्स और ये मान लीजिए बाइसेप की ट्रेनिंग मसल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ जनरेट करता है जो लेडीज़ कहती हैं कि एकदम मने एला लगी से मन ना है शरीर में जान नहीं है तो वो इससे आएगी तो जस्ट 2 बॉटल लीजिए और बस ये हो गया हमारा बाइसेप कर्ल सिंपल बताइए ये कोई भी कर सकता है घर में और मेरे आप विश्वास नहीं करेंगे सीनियर मोस्ट क्लाइंट इज 70 ईयर ओल्ड वो घर में कर रही हैं और डम्बल्स खरीद के कर रही हैं আচ্ছা মানে 70 বছৰীয়া আপোনাৰ এগৰাকী ক্লায়েন্ট আৰু যিগৰাকী ক্লায়েন্টে তেওঁ ঘৰতে কৰে बिल्कुल আৰু weight loss কৰিছে চাগে 5 kgs 5 কেজি weight loss घर में वर्कआउट करके जैसे एक तो ये हो गया सिंपल बाइसेप कर्ल एक्सरसाइज ठीक है ऐसे मूवमेंट है ऊपर नीचे सिंपल मूवमेंट्स हैं ठीक है दूसरी जैसे एक और एक्सरसाइज है बाइसेप्स के लिए यूज करते हैं हैमर कर्ल्स हैमर नाम आया जो हथौड़ा होता है हैमर से कि नीचे ऊपर नीचे की मूवमेंट सिंपल एक्सरसाइज जो कोई भी कर सकता है बच्चे बड़े सब बूढ़े सब कर सकते हैं बॉटल लेके इतना ट्रेनिंग भी करेंगे तो एटलीस्ट मसल्स को स्टिमुलस मिल रहा है और मसल लॉस रोक देगा दूसरी एक हो गई इस तरह की एक एक्सरसाइज जो ये भी शोल्डर के लिए है अच्छा सिंपल ठीक है ना एक हो गई ये सामने और इसमें ना कोई इंजरी का चांस है और इसमें भूल होने का चांस भी कम है सो ये जैसे ये दो चार मैंने आपको जो दिखाई ये अपर बॉडी की एक्सरसाइज हो गई ऐसे ही लोअर बॉडी की भी एक्सरसाइज है बेसिक एक्सरसाइज जैसे लोग कहते हैं कि आथुबिका से अब आथुबिक इज वेरी कॉमन इवन इन 30s लेडीज आर गेटिंग तो अब मैं उनको पिस्टल स्क्वाट्स तो दूंगी नहीं ऑफ कोर्स एंड इट इज वन ऑफ द टफेस्ट स्क्वाट्स टू रीच ओके ठीक है तो उनको मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराती हूँ कि स्टार्ट विद बेसिक मूवमेंट लाइक अ चेयर स्क्वाट कि मैं कहूँ जैसे अब चेयर पे तो सब बैठते हैं बैठना है उठना है बैठना है उठना है दीज आर चेयर स्क्वाट्स जब वो इसमें इसके मान लीजिए 3 सेट 10 रेप के 30 रेप्स कर पाते हैं तो मैं फिर उनको कहती हूँ कि चलिए अब अगर आपका नी पेन नहीं हो रहा है देन आई टेक देम यू नो ग्रेजुअली टू द नॉर्मल स्क्वाट्स और नॉर्मल स्क्वाट्स में भी ये नहीं है कि मैं कह दूंगी आप पूरा डीप स्क्वाट मारिए क्योंकि सबकी इतनी मोबिलिटी नहीं है पेन हो जाएगा सो आई विल जस्ट से कि इतना ही जाओ चाहे पैरेलल टू द ग्राउंड जो आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी सो दीज आर सम बेसिक एक्सरसाइजेज जो कोई भी कर सकता है सो जैसे लोग बहुत आते हैं कहते हैं कि हमें पुशअप सीखने हैं तो पुशअप सीखने हैं पुलअप सीखने जैसे आप ही कह रहे थे तो उनका ऐसा नहीं है कि आप सीधे पुलअप्स पे आ एक ही दिन में तो हम लोग नहीं कर सकते स्ट्रेंथ बिल्ड करनी पड़ती है तो अभी इसमें क्या हो रहा है ना कि ये जो आप हमारा जो ग्लूट पोर्शन है ये ज्यादा उठ रहा है इट शुड हैव बीन लाइक 1 प्लैंक तो और ये तब समझ आता है जब अपना वीडियो रिकॉर्ड करोगे इसीलिए आई रिकॉर्ड लॉट ऑफ वीडियोस टू चेक द फॉर्म तो आपका और मेरा फॉर्म में अगर आप डिफरेंस देखोगे अगर मैं नी पुशअप्स ही दिखाती हूँ तो जैसे आपका ना ऐसे हो रहा है ठीक है और मोस्ट ऑफ लेडीज डू दिस इन परसूट ऑफ गोइंग डाउन सो हमें क्या करना है ऐसे कि ये जो head to glutes 1 plank है and it will just go like this even if you're doing cross legged like this and a full push up will be like this
सो माई एंटायर बॉडी इज मूविंग लाइक वन सॉलिड प्लैंक। लेकिन जो एकदम बिगनर आएगा उसको नी पुशअप से भी पहले आई विल टीच देम वॉल पुशअप्स। जैसे हम फ्लोर पे पुशअप करते हैं, ये हम अगेंस्ट द वॉल कर रहे हैं। द आइडिया इज टू स्लोली बिल्ड द स्ट्रेंथ टू डू फुल पुशअप्स ऑन द फ्लोर एंड इन अ वे आई वुड से एज अ साइंस टीचर कि हम इसको मिमिक कर रहे हैं एक्चुअल पुशअप्स को ऑन द वॉल। सो अगेन द होल बॉडी हैज टू बी इन लाइक वन स्ट्रेट प्लैंक एंड विल गो लाइक दिस डाउन एंड अप। आपके लिए और मेरे लिए ये मूवमेंट इजी हो सकती है, बट देयर आर पीपल जो नीचे जाके इधर भी ऊपर नहीं आ पाएंगे। अभी जब मुझे इक्विपमेंट्स में चाहिए तो कैसे करूँ? सो जैसे अगर कोई बिगनर है, मान लीजिए वो बॉटल से अब वो उनको बेसिक मूवमेंट्स आ गई, देन आई विल से जैसे मैंने धीरे धीरे मैंने जो सबसे पहले खरीदे थे यही छोटे से डंबल खरीदे थे। हाँ, आपने बताया था ना। यस, 1.5 kg के एंड दे आर वेरी वेरी फेवरेट क्यूट वंस। और वही मूवमेंट जो हम अभी बॉटल से कर रहे थे, यू कैन स्टार्ट विद दीस डंबल्स। तो अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट मसल ग्रुप एंड अ बिग वन इज चेस्ट। नाउ लेडीज कहती हैं हमको थोड़ी चेस्ट बनानी है। आप चेस्ट का वर्कआउट करने से आप अमेजिंग डिफरेंस देखोगे अपने पोस्चर में। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जैसे बेसिकली लेडीज की चेस्ट का अगर हम लोग करेंगे तो थोड़ा मैन टाइप का लग जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ है क्या? डू आई लुक लाइक अ मैन? नहीं। आई एम द बिगेस्ट एग्जांपल। आई बीन वर्किंग आउट, मेरा डेडलिफ्ट का मैक्स रेप इज 80 kgs। अच्छा। सो डू आई लुक लाइक अ मैन? No. सो अब क्वेश्चन आएगा कि बेंच नहीं है। बेंच नहीं है कोई बात नहीं, आप फ्लोर पे कर सकते हैं। अच्छा। सो आप फ्लोर पे लेट के भी यही सब चेस्ट वर्कआउट कर सकते हैं। चेस्ट फोकस है अप डाउन अप डाउन। हम जो फ्लाइज कहते हैं, चेस्ट फ्लाइज विच गोज डाउन एंड अप। सो दिस कैन बी डन एट होम। यू नो, यू डोंट नीड कोई महंगा इक्विपमेंट। हाँ। अगर आप सिंपल वर्कआउट करेंगे, जैसे मान लीजिए डंबल नहीं है भाई, तो मान लीजिए ये 2 बॉटल्स ले ली, ठीक है, तो इससे हम जैसे बारबल रोज डंबल रोज की तरह इसको कर सकते हैं। जैसे ऐसे पकड़े डंबल्स को, बैक टाइट की, नेक काइंड ऑफ न्यूट्रल रखिए एंड अगेन रोज है। इनको हम कहते हैं, वैसे डंबल रोज है ये, तो मैं बॉटल से कह रही हूँ तो हम इसको बॉटल रोज कह सकते हैं। सो ये भी घर में की जा सकती है बहुत आसानी से, राइट? ये बारबल स्क्वाट इज एन एक्सीलेंट exercise for your lower body, and it also covers up your back, lot of muscle groups. It's a compound exercise basically, so largely for your lower body because it's a squat, and yeah, I'll be doing a weighted squat. However, saying this is not for beginners. अगर आपको कुछ टाइम हो गया है स्क्वाट्स करते हुए एंड यू आर डूइंग इट इन राइट फॉर्म, तब ही हम इसके प्रोग्रेशन पे आएंगे। एंड इनिशियली टू स्टार्ट विद तो खाली हम बारबल से ही करते हैं, एम्प्टी बारबल। बेसिक आइडिया इज टू जस्ट कीप ट्रेनिंग, कि मसल्स को चालू हालत में रखें, मसल्स को, जॉइंट्स को, तो आपकी जॉइंट पेन जो लेडीज को होती है वो आनी बंद हो जाएगी। কিন্তু এটা নেক্সট যেটো নিউ জেনারেশন হয়, তো তেওঁলোকক আপুনি কি সাজেস্ট কৰিব যে সৰুৰ পৰাই এটা বডিৰ কাৰণে অকমান টাইম উলিয়াওক? बिल्कुल बिल्कुल। आजकल की जो जनरेशन, मैंने पहले भी कहा है ना कि जेन जी बहुत इमोशनली बहुत फ्रजाइल है, और वो कई बार सब चीज़ शेयर नहीं करते हैं, तो एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस एंड डिप्रेशन इज हिटिंग देम एट बैडली इन बैड वे। तो उनके लिए 30 मिनट्स का ये जो एक्टिविटी है ना, इट इज़ गोइंग टू रिलीज ऑल देयर स्ट्रेस। सो पेरेंट्स को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई पे जोर दो, लेकिन इतना जोर मत दो कि वो बेचारों का बचपन ही खत्म हो जाए। लेट देम प्ले, लेट देम गो आउट। जो हम कॉलोनी में जाते थे शाम के टाइम, निकल जाते थे, कुछ नहीं तो अगर कॉलोनी में फ्रेंड है उसके साथ ही शाम को वॉक करने जाते थे। दिस विल ऑल्सो बी अ बिग स्ट्रेस बस्टर फॉर द हेल्थ है तो सब कुछ है। सो इसीलिए वेल्थ आएगी, बिजनेस आएगा, बट अगर हेल्थ गई तो कुछ नहीं है। सो दिस इज़ माई मोटिव कि आई इंस्पायर पीपल टू वर्क ऑन देयर बॉडीज फर्स्ट, स्पेशली द विमेन आउट देयर।
ধন্যবাদ থাকিল আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠান চাই আমাৰ দৰ্শকসকলেও খুবেই ভাল পাইছে আৰু বিভিন্ন টিপছ আমি দিছোঁ বাইদেৱে আমাক বিভিন্ন টিপছ দিছে যাতে আপুনি এটা সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হয় সুন্দৰকৈ যিহেতু কোৱা হয় স্বাস্থ্যই পৰম ধন গতিকে সুন্দৰকৈ সেই ধন আপুনি উপাৰ্জন কৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বাইদেউ আপোনাক Thanks to you all. Thanks to Didi Ahom for covering me up, covering my work, and I will continue to work harder for everyone here. Thank you.